The views and the opinions expressed by our guests are purely their own, shaped by their unique life experiences and personal biases. While we value their perspective, they do not necessarily reflect those of the boardroom or strategy. We invite listeners to engage with an open mind. A commercial artist turned entrepreneur. आपको क्यों लगा कि आपने आपका जॉब छोड़ के entrepreneurship में आना चाहिए? It was not planned. आपने कहा कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग जब आप करते थे तब उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी. कि हम सीखे हैं जहाँ, because at that time there was no certified course for visual merchandising, retail, space design. I think job is very complicating Okay. and business is very simple. Always focus on your brand. नाम एक बार खराब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कमाने में बहुत टाइम लगता है. Can creativity and commercial thing be matched? हो सकता है. सो समझो अगर अपने को क्रिएटिवली भी सोचना है पर क्या मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल है क्या? सर कैसा है ना, सबको नया ही चाहिए. करेक्ट. सस्ते में राजेश खन्ना सबको चाहिए. ये ऐसी बात है. रिस्क मैनेजमेंट एज अ फाइनेंस हेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे करते हैं? क्योंकि कहीं पे काफी भी टाइम लॉस होता है. प्लानिंग जरूरी है. हमें चैलेंज आता है इंस्टॉलेशन. फाइनल प्रोडक्ट बहुत सुंदर है लेकिन वो ठीक से इंस्टॉल ही नहीं हुआ. Today in our boardroom, we have a very dear friend, Amresh Musare. He, in his career, has worked with companies like VIP Luggages, Raymonds, and Future Group in various roles. He is one of the pioneers in visual merchandising. Remember those days when we used to have window displays out of VIP luxury bags? He was one of the first members of those teams. Visual merchandising is a very untouched field, was a very untouched field by that time. And today, when you enter a mall, you see everything organized and kept in a right way in a display, and huge displays are made. This is visual merchandising. From his role as a visual merchandiser and a prototyping engineer, he also had roles like heading finance department for companies like Future Group. So let's see, it has been 16 years that he is now into entrepreneurship and running Moria Creations as a business where he does visual merchandising and signages for his clients like builders, schools, institutions, corporates, and so on and so forth. Let's have a candid discussion at the boardroom with Amresh. Welcome, Amresh. Hi. अमरेश भाई, आप इतना हाई पेइंग जॉब कर रहे थे. यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम जॉब. यू आर विद फ्यूचर ग्रुप व्हेन फ्यूचर ग्रुप वाज इन इट्स पीक. एकदम उसके पीक पे था और आप इतने अच्छे रोल में थे. आप उनका प्रोटोटाइपिंग और विजुअल मर्चेंडाइजिंग, मॉडल डिजाइनिंग कर रहे थे. तो आपको क्यों लगा कि आपने आपका जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए? एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना, इट वाज नॉट प्लान. जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज आई गॉट अ माइल्ड हार्ट अटैक इन 2007. Oh, So post that we had decided to shift to Pune, to my hometown, okay. because last 15 years I was in Mumbai Okay. working with RD&M, Right. VIP Luggage, Raymonds and Future Group. And due to some hectic and traveling, there was a minute heart attack which I faced. So what to do after heart attack? काफ़ी लोग तो हार्ट अटैक आया करके सब दुकान बंद करके घर बैठ जाते हैं और आगे कुछ नहीं करते. हाँ. But I had taken preventive treatment in Mumbai. Okay. Then I had shifted to Pune. And people behind starting my own company are my own bosses. Okay. जिन लोगों के साथ मैंने फ्यूचर ग्रुप में काम किया है, VIP लगेज में काम किया है, यही सारे बॉसेस ने मुझे बूस्ट किया. Okay. You plan strategies for finance, for people. Right. So you can start your own company. यही लोगों ने मुझे फोर्स किया. Okay. और they even committed me that we will support you Right. in the initial stages. So
बैकिंग मिला है तो आई हैड स्टार्टेड ऑफ माय ओन इन पुणे Okay. at very low income. In 2008 I had started my own company. तो ऐसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 2008 में। अरे और मोरिया क्रिएशन नाम देने का रीज़न वही है, इन गणेश चतुर्थी आई हैड स्टार्टेड दिस कंपनी, दैट्स Okay. व्हाई माय कंपनी नेम इज मोरिया क्रिएशन। नाइस। सो आपने काम का प्रेशर और जॉब में जो भागा दौड़ी रहती है उससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंटर किया। आज 15-16 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आपको लगता है कि आपका काम कम हुआ है या आपकी परेशानियां कम हुई है? परेशानियां तो कम किसी की होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। परेशानियां कम है तो आप कुछ करोगे भी नहीं उसको डेवलप करने के लिए। परेशानियां तो आती है, हर एक स्टेजेस में आती है, डिफरेंट लेवल्स उसके रहता है। कुछ फाइनेंशियल रहता है, कभी ऑन साइट प्रेशर्स रहता है, Correct. कभी क्रिएटिव डेवलपमेंट में रहता है, फाइनेंशियल तो होता ही है, लेबर इश्यूज होता है, Correct. ये अप एंड डाउन्स तो चलता ही है। Correct. और So क्या इजी था आपका जॉब में? इजी था ये चीज या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ठीक लगता है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। जॉब आपका जो नज़रिया है ना जॉब करने का, हम्म पूरा 15 साल जॉब ही किया है, हम्म तो मेरा नज़रिया जॉब के, व्हेन यू आर फोकस विथ योर वर्क यू एंजॉय योर वर्क। तो मुझे जब मैं जॉब करता था तो मैं वो एंजॉय करके ही करता, पूरा 100% डेडिकेशन के साथ ही किया है मैंने। करेक्ट। और डाइवर्जन बिजनेस में मैं जब किया है मैंने, तो उसके लिए भी मैं 100% ही दे रहा हूँ। करेक्ट। और आप अपने आप को चिट नहीं कर सकते। करेक्ट। आप जॉब करो या बिजनेस करो, दोनों जगह ओनरशिप तो लेनी है। और ओनरशिप आपको लेनी ही है। जॉब कर रहे हो तो यू आर द पर्सन इज पेइंग यू, करेक्ट। आपको 100% देना ही। करेक्ट। आप नहीं 100% दोगे तो आपको लात मार के निकाल देगा कोई। करेक्ट। सो आप बोल रहे हो कि दोनों भी जगह पे ओनरशिप का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही है फिर। बट जॉब में व्हेन यू रिस्क कम है, बिकॉज आपकी गलतियों का जो नुकसान होगा, जो आपकी गलतियों से या मे बी आपके डिसीजन मेकिंग से जो चैलेंजेस आएंगे, मे बी उसका ओनरशिप शेयर्ड हो जाता है। तो इजंट इट मेक्स अ लिटिल इजियर इन फॉर मेंटल हेल्थ टू बी डूइंग अ जॉब? आपको क्या लगता है? Job is, I think, job is very complicating ओके। and business is very simple. ओके। How you do your business is completely our responsibility. ओके। How we tackle our clients, how we manage our finances or even our staff, करेक्ट। ये पूरी जिम्मेदारी अपनी है। करेक्ट। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसका ब्रांड का नुकसान अपना Yes. ही ब्रांड का First नुकसान of all, we should always focus on your brand. करेक्ट। नाम एक बार खराब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करेक्ट। कमाने में बहुत टाइम लगेगा। करेक्ट। तो आपका ये कहना है कि जब हम जॉब करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल हो जाती है, बिकॉज फिर हम हमारे डिसीजंस या हमारे चॉइसेस के वजह से हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका रेपुटेशन, उनका ब्रांड वैल्यू भी हमारे हम इट इज़ अस टू टेक केयर ऑफ इट। और अपनी कंपनी में सर, अपनी कंपनी, you work for your own company. Correct. And as an employee, when you are working with someone else, you are paid for it. You don't have 100% power of decision making for anything. There is a specific limit of scope we Correct. get to work. करेक्ट। और वही सिस्टम में उतने इसमें ही काम करना पड़ता है। एज एन एंटरप्रेन्योर वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। करेक्ट। सो जॉब अलग है, कम्प्लीटली अलग है, और बिजनेस कम्प्लीटली अलग है। ज़्यादा रिवॉर्डिंग आपको क्या लगा इन टर्म्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन? बिजनेस। आप तो इतने बड़े पोजीशन में थे जब आप जॉब कर रहे थे, wasn't it कि जितना समझो जॉब में तो क्या हम 9 to 6 काम करने के बाद भी वी आर गोइंग टू गेट पेड। नहीं अनुज, बड़ा
पोजीशन नहीं था वो, इतना इतना भी बड़ा नहीं था कि आई वाज इन अ मिड मिड top मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट। विद टॉप मैनेजमेंट यू कैन से। लेकिन ये हासिल करने के लिए पहले काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। करेक्ट। वो हमने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फ्यूचर ग्रुप में एटलीस्ट मिड टॉप लेवल पे मैं आया था। विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो हमने पढ़ा है, that is not a certified course because at that time there was no certified course for visual merchandising, retail space design। ये हम सीखे हैं जहाँ बैंगलोर में मनी नाग सुब्रमण्यम करके है, उनके यहाँ पे हमने रिटेल स्पेस डिज़ाइनिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग और साइनेज, ये 3 कैटेगरीज वहाँ से ग्राउंड लेवल पे सीख के आए हैं। यानी यू कैन से शोरूम खुलने के पहले झाड़ू पोछा करते हैं ना, हाँ करेक्ट। ऐसा ऑफिस झाड़ू पोछा करके क्या होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, करेक्ट। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये हम सीख के फिर अलग अलग लेवल्स पास करके फ्यूचर ग्रुप में थोड़ा सा टॉप मैनेजमेंट में आए। इतना ज़्यादा बड़े भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो काफ़ी आगे हो गया, लेकिन करेक्ट। स्ट्रगल करके यहाँ तक ये पोजीशन तक आए थे। और उसके बाद बिजनेस में योर होल एंड सोल फॉर डिसीजन मेकिंग। करेक्ट। और डायरेक्ट कुछ मिलता नहीं है ना, पसीना बहाने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिलते हैं। करेक्ट। आपने कहा कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग जब आप करते थे तब उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी या सर्टिफिकेशन नहीं हुआ था, एजुकेशन नहीं था। स्कोप कितना था और आज कितना स्कोप है? और क्या आज किसी को विजुअल मर्चेंडाइजिंग या रिटेल स्पेस डिज़ाइन इस नीश के अंदर अपना करियर बनाना हो, अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना हो, तो आर देयर इंस्टीट्यूशंस या कोर्सेज जो यहाँ पे सीखा जा सकता है? There are a lot of courses available right now, even in Pune, even in Bombay, Bangalore, for visual merchandising, retail space designing, BFA है, काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं। और जब हमने सीखा था वो तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखा था। रोटी के साथ क्या खाते हैं ना वो पता नहीं था हमें। जो भी मिलता था वो खाते थे और वैसे सीखा है ऐसा ना। तो अभी वी हैव गुड कॉलेजेस। Initial stages in 2008-9 I had gone to Symbiosis as a faculty lecturer for visual merchandising and prototyping। अभी theoretical syllabus में courses काफ़ी सारे हैं, लेकिन practically काम करने के टाइम वो अलग ही होता है। करेक्ट। तो वो एज एन फैकल्टी आई वाज टीचिंग देम प्रैक्टिकल कैसा आपको डिज़ाइन करने के टाइम सोचना चाहिए और वो डिज़ाइनिंग में उतारना चाहिए। तो उसका स्कोप कितना है इंडिया में? इंडिया में अभी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि कंपटीशन तो एज इट इज़ है, लेकिन रिटेल स्पेस डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जिस प्रकार से इंडिया में चालू है, मॉल्स आ रहे हैं, नए ऑफिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सो काफ़ी स्कोप इंडिया में है। अगर आप सोच रहे हो बाहर जाके मैं कुछ करूँ, कहीं मत जाओ, इंडिया में बहुत स्कोप है। ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ फ़ायदा मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप यहाँ पे ही 5 साल दोगे, आगे 20 साल आपको यहाँ पे टेंशन है। आपने कहा कि आपके मेडिकल इश्यूज़ की वजह से आपको आपका करियर स्विच करना था और आपने इसलिए पूना में आए, और आपके एकदम अर्ली स्ट्रगल्स या अर्ली चैलेंजेस क्या थे एंटरप्रेन्योरशिप के? जब हम जॉब में होते हैं तो बहुत कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट्स पता नहीं होते हैं, तो जैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो सबसे पहले कुछ 2-4 चीज़ें जो आपको ऐसी लगी हो, कह रहे ये भी करना पड़ेगा, ये भी, ऐसा क्या आपके अर्ली चैलेंजेस थे? Early challenges, first of all you should have your own office जहाँ पे आप बैठ सको, जहाँ पे क्लाइंट आप बुला सको। क्लाइंट मेरे पास 2-4 थे ही फ्रॉम रिटेल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन, तो क्लाइंट आने का तो कोई ऐसा ज़्यादा स्कोप नहीं था, बिकॉज इन रिटेल नोबडी गोज टू एनीवन्स ऑफिस। करेक्ट। एवरीथिंग इज डन ऑन द फोन ओनली। करेक्ट। और चैलेंज स्टार्ट करने के टाइम ऑफिस आपका होना चाहिए, प्लानिंग ज़रूरी है।
मैंने फर्स्ट ईयर में ही आई हैड प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years प्लान, आई हैड जॉटेड डाउन ऑन द पेपर। अभी भी मेरे पास लैपटॉप में वो कॉपी सेव्ड है, मेरे बच्चे को भी दिखाता हूँ मैं प्लानिंग कितना ज़रूरी है, कौन से साल में मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, ये मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था। इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्टाफ करना है, और क्या क्या चीज़ें ये फील्ड में अगर मैं उतर रहा हूँ तो मेरे पास इन हाउस क्या क्या चाहिए, कौन से साल में क्या क्या आएगा, ऑफिस कब बनेगा खुद का, मशीन्स फिर क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट 5 years मैं रेंट्स प्लेस में ही काम किया है, वर्कशॉप, एक गैरेज था सदाशिवपेट में, गैरेज आगे था और बैक साइड में जो रॉ मटेरियल सारा गैरेज का रखते हैं ना, वहाँ पे मैं बैठता था। ओके। वैसा हमने स्टार्ट किया। 3-4 साल के बाद वी आई हैड टेकन प्लेस ऑफ माई ओन। 2-3 साल के बाद फिर वो कंस्ट्रक्ट किया 4 फ्लोर का बिल्डिंग। अभी 2 फ्लोर मेरे पास है, 2 फ्लोर रेंट आउट किया हुआ है। ऐसा सारा प्लानिंग से ही सारा सिस्टम सेट होता है। बट आपके जब एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो आपको क्या लगा कि जैसे जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि काम अपने आप आ जाएगा, बट पता चला कि नहीं, सेल्स करना पड़ता है और सेल्स डिफिकल्ट है। नोबडी गिव्स यू जस्ट बिकॉज दे नो यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क, यू विल हैव टू प्रूव दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गिव एंड व्हाट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऐड। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो सेल्स काफ़ी मुश्किल लगता था। मैं भी क्रिएटिव फील्ड का हूँ, तो क्रिएटिव लोगों को अपने पास बना के रखना और एट्रिशन से बचना, वो मुझे इनिशियल डेज पे बहुत चैलेंजिंग लगता। ऐसे आपको इनिशियल डेज के से क्या चैलेंजेस याद है कि कितना भी हम प्लान करते तो बट हर एक चीज़ प्लान के हिसाब से चले, ये कितना पॉसिबल है? प्लान के हिसाब से चैलेंजेस मतलब मुझे चैलेंजेस काम मिलने के लिए बहुत कम चैलेंजेस आए, क्योंकि चैलेंजेस मुझे इम्प्लीमेंटेशन, जब हम लोग प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद जो इंस्टॉलेशन होता है, ओके, वो स्टेज में हमें चैलेंजेस आते हैं। ओके, चैलेंज मेरे फील्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, पहले तो अब आपके काम का स्टाइल कैसा है, जो लोगों को प्रोडक्ट के हिसाब से जो डिज़ाइन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग या पैकेजिंग चाहिए, व्हेन दे नो यू इट इज़ वेरी इजी टू गेट द बिजनेस। तो वो डिफ़िकल्टी मुझे सेल्स मार्केटिंग में बहुत कम आई। आपके 15 साल के एक्सपीरियंस और आपके फील्ड में आपको सब जानते थे लोग, अपना डेडिकेशन भी मालूम है और रिजल्ट्स भी पता है, तो मुझे बहुत ही कम डिफिकल्टी आई, चैलेंजेस आए हैं सेल्स के लिए इनिशियली। फेस जो हमने डिफिकल्टी जहाँ पे आई है वो इंस्टॉलेशन, लेबर ओरिएंटेशन जो जॉब्स है वहाँ पे काफ़ी सारा फेस करना पड़ा। सेल्स मार्केटिंग आई थिंक आई डोंट हैव एनी इश्यूज। आपने जब चालू किया होगा तो आपने आपकी अर्ली टीम कैसे बनाई? आप कितने लोगों की टीम अपने पहले स्टार्टिंग में, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आपने की क्या, बिकॉज आई एम श्योर कि आपका बिजनेस थोड़ा सा लेबर सेंट्रिक भी है, आपको प्रोडक्शन करना है, आपको सर्विस देनी है, लॉजिस्टिक्स भी मैनेज करना है, क्योंकि आप जो भी बनाओगे वो एंड, जैसे आपने कहा कि आपको इंस्टॉलेशन करवाना है, सब करना है। इनिशियल पहली टीम आपने कैसे बनाई? हाउ डिड यू अट्रैक्ट टैलेंट, हाउ डू यू ट्रेन देम? आप जब जॉब कर रहे होंगे तभी भी आपने काफ़ी टीम को लीड किया होगा, वो टीम को लीड करना और एंटरप्रेन्योरशिप में टीम बनाना, उसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आई? शुरुआत जब मैंने की थी, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे, जिनको मैंने ट्रेन किया था, वो लोग भी बिजनेस में ही थे, डिज़ाइनिंग फील्ड से ही थे। आफ्टर 4-5 years वी गेट अपार्ट, अलग हो गए। लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है, एक आदमी से पूरा बिजनेस रन होता नहीं, उसके लिए हमको टीम की ज़रूरत है, तो ही
एक आदमी पूरी मैच एक आदमी खेल नहीं खेल नहीं सकता, सकता, तो correct. आपको पूरा टीम वर्क के साथ ही जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमने टीम बनाई, मैंने टीम बनाई मतलब, जिसमें शुरुआत में एक्चुअली सारा काम मैं खुद ही करना चाहता था शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में ध्यान में आया कि ये अकेले की बस की बात नहीं है। तो कोलैबोरेशन कैसा करना चाहिए, एसोसिएशन किस लोगों के साथ करना चाहिए जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा बिजनेस में, हम्म, वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद ध्यान में आया। हम्म, काम मिलते गया, होते हम्म, गया, पैसा आते गया, वो अलग बात है, हम्म, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर सीखने का टाइम मुझे 4-5 साल के बाद ध्यान में आया ये, हम्म, कि कहाँ पे गलत हो रहा है, हम्म, कहाँ पे सही जाना चाहिए। हम्म, तो ये देन आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद द एसोसिएट्स, हम्म, जहाँ पे आपका इंफ्रा कॉस्ट कम लगती है, हम्म, और एसोसिएट्स के और कोलैबोरेशन के कारण काफ़ी वॉल्यूम बिजनेस का आप डबल कर सकते हो करेक्ट, बिजनेस। ये करेक्ट. थोड़ा टैक्टिक, फिर नेटवर्किंग ऐसे ज्वाइन किया मैंने। हम्म. सोशल प्लेटफॉर्म्स तो है इंडिया मार्ट, तो और आपने इनिशियल जो बिजनेस चालू किया था तो इट वाज मोर ऑफ 1-to-1 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, और आप वेंडर पार्टनर्स और एसोसिएट से काम करवा के ये शुरुआत में ऐसा ऐसा किया था। किया. तो और फिर आपने पहली हायरिंग कब की, आपने कब आपकी टीम बनाना शुरू की? इमीडिएटली हायरिंग तो मैन पावर की ज़रूरत जरूरत तो पड़ी. इमीडिएटली जो बेसिक डिज़ाइनर्स टीम है, ओके, प्रोडक्शन टीम है, ओके, यानी शुरुआत में विनाइल प्लॉटर रहेगा आपके पास, लेज़र रहेगा, ओके. बेसिक वो चलाने के लिए मैं ऑपरेटर्स थे. ऑपरेटर्स ज़रूरी है, मैनेजर्स। वैसे मेरे 7-8 लोगों का टीम था ओके, शुरुआत में, अभी 15 लोगों का टीम है, ओके. और एसोसिएट्स है मेरे पार्टनर्स हैं। वी वर्क एज एन व्हाट वी से, ऑन पेपर्स वी आर नॉट पार्टनर्स। करेक्ट. बट बट टेक्निकली हम लोग या ऑलमोस्ट सारा बिजनेस साथ में ही कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में, हर असाइनमेंट you में can किधर ना say किधर we ओवरलैपिंग. invest on infrastructure, manpower, करेक्ट, not on papers we are not partners, but करेक्ट. we हाँ, invest on infrastructure, we invest on manpower. करेक्ट. That way we collaborate with each other. अपन जब एंटरप्रेन्योरशिप में, जब आप आपके कंपनी के खुद ही एचआर हेड हो, ऐसा बोलते हैं, यू आर वेयरिंग द एचआर रोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिव टैलेंट को संभालना या क्रिएटिव टैलेंट को डील के साथ डील करना कितना इजी या डिफिकल्ट है? क्रिएटिव पीपल आर डिफरेंट देन रेगुलर योर मैनेजरियल स्टाफ और मे बी योर लेबर. तो आप तो एकदम क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम श्योर कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, डिजाइनर्स whom you would be working with. इनफैक्ट आपके जो एसोसिएट्स है, पार्टनर्स है, वो भी क्रिएटिव बैकग्राउंड से ही होंगे. तो क्रिएटिव लोगों के साथ काम करना कितना इजी है, डिफिकल्ट है? उसके लिए खुद क्रिएटिव रहना ज़रूरी है, नहीं है? कैसा एक क्रिएटिव एजेंसी चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका मतलब आप भी उसमें से हो, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर? क्रिएटिव टीम या क्रिएटिव पीपल, ये लोगों के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके मूड के हिसाब से सारा बैलेंस करना पड़ता है। करेक्ट, अकाउंट्स और ये क्रिएटिव पीपल, उनको कुछ क्रिएटिव वाले को लेना देना नहीं है बिजनेस अकाउंट से। करेक्ट. तो इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही वी हैव टू क्लैरिफाई आवर थॉट्स एंड अकाउंट थॉट्स, बिजनेस थॉट्स विद देम, और उनको फिर ओपनली छोड़ देना चाहिए क्रिएटिविटी के ऊपर। वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस, नहीं तो क्रिएटिविटी दब जाती है, करेक्ट. उनके जो कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ वो बाहर नहीं आते। और डील करना क्रिएटिव लोगों के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। उनके साथ उनको खुल के काम करने दो। तो आप जब जॉब में थे, आप क्रिएटिव बैकग्राउंड से थे, तो आपको आपके जो बॉसेस थे या मे बी आपके हमारे बॉसेस भी वैसे ही काम करते थे, इसके लिए हम जो हमने सीखा है वही करेंगे। इनके साथ पंगा नहीं लेना है, कभी भी काम करते थे। ये 10 to 6 टाइम वाला जॉब नहीं है क्रिएटिव लोगों का। हाँ,
वो रात को 9-10 बजे सोते रहेगा, उठेगा और कुछ स्केच करेगा, खत्म करेगा। और उनको पसंद नहीं है 2 स्केच 3 स्केच ऑप्शंस में दे, ही विल डिजाइन ओनली वन डिजाइन विच ही लाइक्स, एंड उनका फोकस ज़्यादा रहता है यही फाइनल होना चाहिए, मैं और नहीं करेंगे। बट एक कमर्शियली कितना वायबल है? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनको संभालना हमको हमारी नीड है, बिकॉज हमारा बिजनेस फील्ड इज क्रिएटिव। बट कमर्शियली आपका जो फाइनेंस हेड है आपके अंदर का, या आपका जो ऑपरेशंस हेड है आपके अंदर का, इन सब चीज़ों को कमर्शियली एक्टिव प्रॉफिटेबल रखने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है फिर? कुछ टाइम प्रॉफिट छोड़ देना पड़ता है। क्या है, जब आपके पास काम है हाँ तब लोग मिलते नहीं, हाँ जब काम नहीं है तो लोगों का बहुत- फायदा नहीं हाँ, कितने भी वैसा अच्छे है, तो टैलेंट हो। आपको संभालना तो सभी को पड़ता है, करेक्ट इवन लेबर्स, इवन क्रिएटिव पीपल्स, इवन करेक्ट फैमिली जैसा संभालते हैं ना वैसा ही करेक्ट। ये फैमिली है। तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स, इफ्स एंड बट्स सब में होता ही है, थोड़ा टैकल करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। फाइनेंशियली क्रिएटिव लोगों का फाइनेंशियली, अभी मैं क्रिएटिव हूँ करके ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जितने क्रिएटिव रहते हो बाय हार्ट बाय माइंड, उतना कमर्शियल सक्सेस मुश्किल हो जाता है? यस, बहुत मुश्किल। तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए कि किस तरीके से हम क्रिएटिव में भी एक्सेल करें और कमर्शियली भी उसको उसका वैल्यू एस्टेब्लिश कर सके, या उसको कमर्शियली भी एक जो उसको डिजर्व करता है एटलीस्ट उतना तो भी उसको बिजनेस में कन्वर्ट करे? नहीं, आपको कुछ वो हिसाब से स्टेप्स लेने पड़ेंगे सर। क्रिएटिव फील्ड में ही आपको अगर नाम करना है तो अकॉर्डिंगली आपको वो हिसाब से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जब आप दिखोगे तो ही बिकोगे, नहीं तो मुश्किल है। सो जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो कि आपके काम में क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, बट आपके दूसरे डिपार्टमेंट से मे बी सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस में थोड़ा बिजनेस एंगल लाके उधर अपने आप को थोड़ा सा एनरिच करके मे बी कॉम्पनसेट करो इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू लूज इन क्रिएटिविटी। जैसे मैं टू बी मोर एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो, कि मे बी एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे को मेरे क्लाइंट के लिए एक विजन आया है, या एक आइडिया है जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, या इस कैंपेन के साथ जाके, या इस मार्केटिंग या इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ जाके उसको जो फायदा आएगा। मे बी माई क्लाइंट इज नॉट रिलेटिंग इट विथ, बट आई थिंक एज अ क्रिएटिव पर्सन कि नहीं, दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव, okay, and I'm not able to adapt with what client is saying, right? And this makes a little conflict in what can be commercialized and what we can give, right? But in this case itself, if my sales team, if my marketing team can make a system where we align with clients' vision, clients' thought process, and match it in our operations, and from the first go itself, we take small steps that keep us aligned with the client's requirement, then can creativity and commercial thing be matched? हो सकता है। हो सकता है। आपको कभी ऐसा कोई मेजर चैलेंज आया है जहाँ पे आपको क्रिएटिव ब्लॉकेज आया हो, या क्लाइंट को भी आइडिया नहीं है बिकॉज वो क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहा है, बट और हम उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे विथ व्हाट डिजाइन्स और व्हाट आइडियाज वी आर प्रेजेंटिंग टू देम, और इस सिचुएशन में फिर आपने किया क्या? कैसा है ना, थीम पहले ही डिसाइड करते हैं, सो ऑन द थीम वी हैव टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सारा 3-4 ऑप्शंस कॉन्सेप्ट्स थीम बना के फिर वो अप्रूवल होता है, और ये जॉइंटली विद द फ्रॉम कस्टमर एंड वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, देन डिसाइड ऑन द थीम, कॉन्सेप्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन। कंटिन्यूस फीडबैक लूप बोल रहे हो कि आपकी इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ एक प्रोसेस। महीने का 1.5 महीने का ये प्रोसेस होगा। तो हो सकता है मे बी टाइम ज़्यादा लगे, बट आप इवेंचुअली क्लाइंट
और आप अलाइन हो ही जाओगे, होना ही पड़ता होना ही पड़ता है, है, नहीं तो वो आउटपुट आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्लाइंट को उसका प्रोडक्ट सेल करना है, करेक्ट। उसको क्रिएटिविटी से भी मतलब होता है, फाइनली रिजल्ट्स उसका प्रोडक्ट सेल होने के बाद ही मिलता है। करेक्ट। सो ये सारा अभी काफ़ी सारा बहुत क्रिएटिविटी ज़्यादा हो गया। हमें चैलेंज आता है इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि क्रिएटिविटी एक डिज़ाइन टीम अलग है, प्रोडक्शन टीम अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन का टीम अलग होता है, ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। जो क्रिएटिविटी आप बनाते हो एक्चुअल वो प्रोटोटाइप इसके लिए करना पड़ता है, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं मटेरियल कौन सा रहेगा उसमें, करेक्ट। फॉर्म कैसा रहेगा और बिजनेस कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी के हिसाब से मटेरियल डिसाइड होता है और फिर प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन होने के बाद जो अच्छी क्रिएटिविटी है वो फॉर्म शेप लेती है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। करेक्ट। वो फाइनल प्रोडक्ट बहुत सुंदर है लेकिन वो ठीक से इंस्टॉल ही नहीं हुआ। करेक्ट। तो वो इंस्टॉल होने के लिए जब ये क्रिएटिविटी टीम काम करती है ना, उसका बेसिक फाउंडेशन, टेक्निकल डिटेलिंग, ये भी मायने रखता है। मायने रखता है और ये डिज़ाइनर को ही ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट। सिर्फ रैंडमली कुछ स्केच बनाया हवा में और वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है तो वो फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे इट्स अ प्रोसेस, तो आपको ध्यान में रखना है जो लेबर अपना फिट कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसके लिए भी इजी अपना डिज़ाइन कैसा हो। करेक्ट। वो हिसाब से ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं जो Correct. ध्यान करें। क्रिएटिविटी ही एंड है ऐसा नहीं है। करेक्ट। एंड स्टेज जो इंस्टॉलेशन का है ना, वो भी ध्यान में रख के क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंटेशन करना। Correct. So, and that's the beauty of the podcast also कि as a business owner आप इतना जगल करते हो अपने माइंड में कि एक HR सेल्फ एंड एक ऑपरेशन सेल्फ, कि जब हम एक HR के हिसाब से सोचते हैं तो और उसमें भी हमको एक ऑपरेशंस के हिसाब से भी सोचना है कि हम इसको ऑपरेशनली कैसे ऑप्टिमाइज कर सके, इसको सिस्टम में कैसे ला सके। आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन हेड भी होते हो एंड एज एन ऑपरेशन हेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इतना वाइड आपका फील्ड है, इतना इवॉल्विंग फील्ड है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग आज से 15 साल पहले अलग होगा, तभी मटेरियल्स, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन के टेक्निक्स अलग होंगे। आज 15 साल बाद बहुत कुछ इवॉल्व हुआ होगा। इन सब टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन में आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के चेंजेस में वो इवॉल्व हुए होंगे। इन सब पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एज एन operational head in the organization, what steps do you think that you have taken, or how do you make sure that the quality promise that your organization gives is maintained, the consistency is maintained? टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी चेंज तो हुआ है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज़ नाउअडेज यूज्ड ओनली इन रिटेल स्टोर्स एंड मॉल्स, लेकिन विजुअल मर्चेंडाइजिंग की ज़रूरत ये फ्रूट वाले से लेके स्टोर रिटेल मॉल वालों तक, मतलब एक छोटा फ्रूट सेलर भी है तो उसको भी उसका प्रोडक्ट सेल होने के लिए करेक्ट जूसी फ्रूट्स ही सामने रखने पड़ते हैं। करेक्ट। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कुछ उसमें ऐड करो या कुछ करो, आप आपका एग्जिस्टिंग सेटअप कैसे लगाते हो, आपके प्रोडक्ट्स को कैसे, मतलब मैंने देखा है फ्रूट स्टॉल वाले ऐसे समझो अगर ऑरेंजेस है तो ऑरेंजेस का ऐसा माउंटेन बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, एंड दैट अट्रैक्ट्स। सिंपल एग्जांपल है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो फ्रूट सेलर विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही करता है। करेक्ट। प्रोडक्ट डिज़ाइनर पैकेजिंग जो करता है वो भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही करता है। करेक्ट। हम लोग भी ब्लेजर पहनते हैं, आप खुद का विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही करते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। करेक्ट। टेक्नोलॉजी कितनी भी आए मार्केट में, करेक्ट, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, अभी मार्केट हर एक 10-15 साल के बाद चेंज होता है। वैसे ही जो पहले 2000 में रिटेल
था, विजुअल मर्चेंडाइजिंग था, वो अभी के स्टेज में ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। हर एक प्रोडक्ट का अपनी अपनी पीरियड्स रहता है, ग्रोइंग पीरियड। वैसे ही आज के स्टेज में विजुअल मर्चेंडाइजिंग कोविड के बाद लोग प्रेफर कम करते हैं स्टोर में घूमना, मॉल में जाके परचेसिंग करना। उससे मॉल में जाके परचेसिंग कम हो सकता है, लेकिन विजुअल मर्चेंडाइजिंग या रिटेल स्पेस डिज़ाइनिंग ये कम नहीं होगा कभी भी। टेक्नोलॉजी वाइज हर एक की एक्सपेक्टेशन हर 10 साल के बाद अलग अलग फॉर्म्स आते हैं टेक्नोलॉजीज़ के, उसमें डेवलप करना ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या काम करेगा? करेक्ट। मे बी UI UX डिज़ाइन भी एक तरीके का विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। वही है, करेक्ट, सिर्फ अलग अलग नाम चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक फाउंड वही है। करेक्ट। हर एक का VM का भी वही है, रिटेल स्पेस डिज़ाइनिंग का भी वही है, और साइनेज सॉल्यूशंस, हर एक का बेसिक तो सभी का सेम ही होता है। करेक्ट। तो इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ, अलग अलग इवॉल्विंग ऑफ प्रोसेसेस के साथ आप लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए या वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप लोग इंटरनली क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हो कोरिया में? We participate in most of the launches of the product to upgrade ourselves. मार्केट में आने के पहले क्या नया आ रहा है, वो जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस टाइम ही हम लोग उसका ये बारे में ज़्यादा करके पूरी समझ लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, मार्केट क्या चलने वाला है, रनिंग मार्केट कैसा होता है, वो हिसाब से अपने आप को फिर डेवलप करते हैं। सो समझो अगर अपने को क्रिएटिवली भी सोचना है, पर क्या मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल है, क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, तो उसको आपकी क्रिएटिविटी को भी एक एक्सटेंशन मिलता है कि अरे अब ये भी पॉसिबल है, ये सब भी कर सकते हैं। इससे कैसा है ना, सबको नया ही चाहिए। करेक्ट। सस्ते में राजेश खन्ना सबको चाहिए वो ऐसी बात है। तो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एक्चुअली, और अच्छा भी चाहिए, करेक्ट, टिकना भी चाहिए, और लंबा चलना भी चाहिए, और सस्ता भी चाहिए। सस्ता भी चाहिए। मटेरियल ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं मार्केट में। क्रिएटिव आदमी क्रिएटिविटी डिज़ाइन में करेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, वो तो एक ऑपरेशंस वाला ही बंदा करेगा। ऑपरेशन वाला बंदा करेगा, लेकिन वो सारा ये सारे गिमिक है बजट की। बजट इज अ गिमिक। हाँ, गिमिक बजट है, अकॉर्डिंगली कोई भी डिज़ाइन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है एज पर द कितना प्रोसेस हेवी है आपका काम? जब और क्या क्या इसमें स्टेजेस आते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं आपको क्लाइंट ब्रीफ आने से लेके लास्ट इम्प्लीमेंटेशन तक, और वो हर प्रोसेसेस में एज एन ऑपरेशन हेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने कुछ SOPs, कुछ सिस्टम्स बना के रखे हैं ताकि चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो? किस तरीके से मैनेज करते हैं? आई एम श्योर कि वर्किंग विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, आप किसी के लिए साइनेज बना रहे हो, किसी पूरे टाउनशिप के लिए उनके लिए डायरेक्शन, उनके लिए बोर्ड्स बना रहे हो, प्लस आप किसी रिटेल स्पेस के लिए कुछ विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स में साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनको मैनेज करना, इनके प्रोसेसेस को मैनेज करना, और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट में जनरली? प्रोसेस अभी करंट स्टेज में हर एक कंपनी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो मेजरली डिज़ाइन पार्ट कम्स फ्रॉम द कंपनी। इंडियन कंपनी रहेगा तो ब्रांड मैनुअल आता है, वी हैव टू फॉलो द ब्रांड मैनुअल फॉर प्रोडक्शन इन सम केसेस। In some cases, we have to create our own designs. डिज़ाइन स्टेज 6 महीना पहले चालू होती है कस्टमर के साथ, एंड प्रोडक्ट के साथ। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद उसका BOQ बनता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपको रिटेल स्टोर का करना है, या साइनेजेस का करना है, या एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो। डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन के बाद BOQ बनता है। BOQ का स्क्रूटनी आपको
वैल्यू इंजीनियरिंग करना पड़ता है ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब एक डिज़ाइन प्रोडक्ट, सपोज ये मग है, ये मग में वैल्यू इंजीनियरिंग कैसा करूँ? यही मग अगर मुझे वॉल्यूम में करना है या एक सिंगल मग करना है, एक सिंगल मग करना है तो मैं 10,000 का एक मग कर सकता हूँ। मुझे 1000 मग करना है तो 10,000 का एक मग करेगा तो इतना बजट नहीं रहता। करेक्ट। वहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग आता है, जहाँ पे प्रोडक्शन है या कस्टमाइज एक पीस करता है, दोनों में वैल्यू इंजीनियरिंग आता ही है। BOQ वैल्यू इंजीनियरिंग, then countering of estimates, then प्रोडक्शन। वॉल्यूम है प्रोडक्ट का तो वी डू प्रोटोटाइपिंग। एक चीज़ के लिए प्रोटोटाइपिंग नहीं होता है। करेक्ट। और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वी डू प्रोटोटाइपिंग, फिर उसका एस्टिमेशन, सैम्पलिंग एंड देन फाइनल प्रोडक्शन। सिंगल प्रोजेक्ट अगर कुछ करना है, रिटेल स्टोर स्पेस डिज़ाइनिंग का अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 2 महीना 3 महीना is the production time for showrooms. For project implementation, for example, if we are doing manufacturing plant, complete manufacturing plant, what we had done Vespa. Okay. उनका एक्सपीरियंस सेंटर या कुछ ऐसा? हाँ, टाटा स्टील, then we had done चाकन में ऑटोनियम, CMI. These are the manufacturing companies what we had done. वैसा प्रोजेक्ट करना है तो it takes 30 days for production and 4 days for installation. डिज़ाइनिंग का अलग है, रिटेल स्पेस डिज़ाइनिंग का पीरियड अलग जाता है। करेक्ट। क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट अलग लोग रहते हैं। करेक्ट। फॉल सीलिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, करेक्ट, फ्लोरिंग वाला, ये सारे लोग इम्प्लीमेंटेशन। साइनेज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो है साइनेजेस का वो अलग काम रहता है। इंडस्ट्रियल में आपको डायरेक्शनल साइनेजेस करने पड़ते हैं। करेक्ट। मेन फसाड साइनेजेस आता है, रिसेप्शन का आता है, करेक्ट, केबिन साइनेजेस आते हैं, फिर आपके मैंडेटरी और इमरजेंसी फायर एग्जिट साइंस, ऐसे अलग अलग वॉल्यूम ऑफ डायरेक्शनल साइनेजेस सारे आते हैं। करेक्ट। कैफेज रिसोर्ट्स करते हैं तो वो अलग, उनके लिए अलग साइनेजेस। करेक्ट। तो वो फास्ट काम होता है। कैफेज रिसोर्ट्स इंडिविजुअल एक एक साइन, 2 साइंस ऐसे करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे साइज ऑफ द साइनेज इज बिगर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई, और रिटेल कंप्लीट अलग है। तो ऐसे अलग अलग 3 क्राइटेरियाज हैं। तो डिजाइन का एक डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट हो गया, एंड देन इंस्टॉलेशन। हर एक के लिए डिज़ाइन की टीम की ज़रूरत नहीं। करेक्ट। जिसमें आपको डिज़ाइन टीम सिर्फ न्यू कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है, बाकी मेजरली मैनुअल के हिसाब से ही काम करती है। मैनुअल के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, एंड देन प्रोडक्शन के बाद आपका इंस्टॉलेशन। हाँ। एंड प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं? व्हाट डिफरेंट प्रोसेसेस डू यू हैव इन प्रोडक्शन? काफ़ी प्रोडक्शन में वैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलग है। करेक्ट। प्रिंटिंग, सो वी हैव HP latex large format printer, Epson large format printer, we have UV flatbed printer for large printing machines. Offset printing नहीं होता है हमारे पास। Then for signage making we have channel bending machine for industrial signs, aluminium profile में जो कंप्यूटर पे ही सारा बेंडिंग होता है, channel bending machine है हमारे पास। Vinyl plotters we have, small and big. Laser cutting machine for acrylic, 2x3 and 3x4 ऐसा बेड का साइज अपने पास है। लैमिनेशन मशीन्स की ज़रूरत होती है। देन वी डोंट डू ये सारा प्रोडक्शन। लेटर्स वगैरह बनने के बाद ऑयल पेंट नहीं लगाते हैं, वी यूज़ PU कोटिंग। PU कोटिंग जो बाइक कलर्स रहता है ना, लंबी पलटी करके 3 कोट्स लगते हैं। करेक्ट। बाइक का कलर निकलता नहीं है 1-2 महीने में। करेक्ट।
10 साल 15 साल नहीं निकल। करेक्ट। इसके लिए पीयू कोटिंग हर एक वॉट एवर साइन बनेगा वो पीयू कोट करके ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी any work from Moria creation if you do, it has zero maintenance because we use only branded material in the product. ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है ना, करेक्ट, अगर वो 50% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ द साइनेज मेंटेनेंस का। करेक्ट। और इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग ब्रांडेड मटेरियल यूज करते हैं, Correct. वो 10% कॉस्ट ज़्यादा बढ़ भी जाए ना, तब भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 40% आप प्रॉफिट में। सो लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी बहुत क्योंकि वी हैड डन साइनेज फॉर रिलायंस इनोवेटिव सेंटर, हाँ मार्शल कर सर बैठते हैं। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड वेंडर फॉर रिलायंस, बट स्टिल आई हैड डन देयर इनोवेटिव सेंटर साइन बोर्ड हाँ 12-13 years बैक बानेर में है, ओके रांका के बाजू में। टिल डेट LEDs आर वर्किंग, पैनल शेड आर इंटैक्ट सेम, एक्रेलिक ग्लिटर्स आर इंटैक्ट, पावर सप्लाई अभी भी चालू है। तो कभी कभी हम लोग हमारा ही नुकसान करते हैं लेकिन बट वी वर्क ओनली इन ब्रांडेड मटेरियल। करेक्ट ऐसा अब अच्छा काम करो, आपके पास लोग सामने से आते हैं। करेक्ट इसके लिए काम मांगने मैं बहुत कम जाता हूँ, काम आते रहते हैं। करेक्ट। इतने सारे प्रोसेसेस है, इतने सारे मशीनरीज इन्वॉल्व है, तो इतने सारे स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। आपके पास हर एक के लिए ऑपरेटर्स होंगे। समझो फॉर एग्जांपल इसी प्रोसेस में किसी एक ऑपरेटर पे कोई बोटलनेक आ जाता होगा कभी। बहुत बार होता है सर, मैन पावर में तो एवरीडे हमको फेस करना पड़ता है। और कोई भी मशीन टेक्नोलॉजी नई लेने के पहले हमें ही सीखनी पड़ती है वो। अगर ऑपरेटर नहीं आता है तो अपने आप हमें उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो अभी भी जितनी मशीन्स है वो सब मशीन्स हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप पूछोगे ना ये क्यों बंद हो गया, उतना नहीं बता सकते, लेकिन वी कैन ऑपरेट द मशीन। वी हैव आपको जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑपरेशंस का मैनेजमेंट स्मूथ होने के लिए उस ऑपरेशंस में जो HR का आपका सेल्फ है कि वो बंदा उसको फिर जैसे अगर बहुत ही क्रिटिकल बंदा जो कोई रोल है, बहुत मुश्किल है सर। ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं मैनेज करना मैन पावर, क्योंकि सिर्फ लेबर मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है इसमें स्किल लेबर्स भी है अलग अलग मशीन्स में। अभी स्किल लेबर्स हम लोग अप्लाई जब करते हैं ना, जॉब पोस्ट करते हैं, तो हेल्पर लेबर, फैब्रिकेटर्स, गवर्नडी लेबर्स, ये लोग सिविल वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारे फील्ड के लोग का की वर्ड्स ही नहीं है ये प्रोफाइल में। तो हमें उनको लेना पड़ता है, फैब्रिकेटर्स को, हेल्पर्स को, और उनको ट्रेन करना पड़ता है। फिर वो प्रॉब्लम हर एक साल के बाद 6 महीने बाद आता है, क्योंकि यहाँ पे सीखते हैं और निकल भी जाते हैं, तो वो रिटेन करना थोड़ी क्लास के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक इश्यूज भी है फेसिंग। तो जो आपका HR सेल्फ है, क्या वो कुछ आपके जो फाइनेंस सेल्फ से आर्ग्यू करता है कि मुझे कुछ ऐसे बंदे दो जो मैं स्पेयर में रखूं ताकि मैं उनको ट्रेन कर सकूं, ताकि कोई अड़चन आए तो अपने पास एक बैक फोर्स रेडी हो? और क्या आपका फाइनेंस सेल्फ फिर आर्ग्यू करता है उससे कि मे बी आपका ऑर्गेनाइजेशन वो अफोर्ड कर पाता है? कभी हम रख ही नहीं सकते हैं बैकअप टीम। सो क्या चैलेंज आता है? मैच है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। ओके, लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, कि क्योंकि अगर ऑपरेटिव स्टेज पे ये लोग नहीं टिकेंगे लेबर्स या ऑपरेटर, सो वी गिव द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में हम रहने से प्राइसिंग वैल्यू नहीं मिलने के वजह से चैलेंज आता है कि हम बेंच पे कुछ लोगों को बैकअप करके रखें। क्या कभी कभी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी सेक्रीफाइस करके करना भी पड़ता है प्राइस रेंज के हिसाब से। क्या आपको ऐसा लगता है कि जनरली हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए या इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम इंडिया में काम करते हैं, कहीं इसके वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है या मे बी प्रोसेसेस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं बिकॉज आपको उतना स्किल लेबर को रिटेन नहीं कर पाते, आप सैलरीज उस हिसाब से नहीं दे पाते, या मे बी आप ट्रेनिंग्स नहीं दे पाते बिकॉज ट्रेनिंग अगेन इज अ कॉस्ट विच इज टू बी एडेड इन योर प्रोडक्ट, तो और वो प्राइस मिलता नहीं है। तो क्या इसे थोड़ा मेरे हिसाब से ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। वो
हमारे इसमें भी कम होती है, लेकिन ज़रूरत है रिटेंशन के लिए, रिटेंशन। स्टाफ रिटेंशन के लिए आप समझो ज़रूरी है। आपके लिए आपने कहा, मेरा एक क्वेश्चन था, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि आपका सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशनल चैलेंज क्या है। आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्यों सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, या क्या मेजर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, एंड देन हाउ डू यू जनरली एज एन बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर डू टू टैकल सच काइंड ऑफ चैलेंजेस? डिज़ाइनिंग करते हैं के टाइम है ना, वो प्रोडक्ट कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला, ये देखना, साइट सर्वे करना, रेकी करना, ये बहुत ज़रूरी है। रेकी होने के बाद भी कुछ कंडीशंस ऑन साइट ऐसे होते हैं जो टफ जाता है इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन थिंग, एक हम लोग चाकन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का साइनेज इंस्टॉलेशन करने वाले, दिस इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पे कैसा होता है ना, हमारे फील्ड में कुछ काम हमें आर्किटेक्ट से भी आता है, ओके, कुछ डायरेक्ट कस्टमर्स से भी आता है। करेक्ट। तो इन्वॉल्वमेंट कौन से स्टेज में हमारा आता है उस पर कुछ- भी काफी चीजें डिपेंड करती हाँ, प्लस माइनसेस होते हैं। हैं। अभी ये जो हमने साइन बनाया था, साइनेज 10 फुट के दायरे में बोर्ड के हम्म, हाई टेंशन वायरिंग का सप्लाई जा रहा ओके, है, और एंट्रेंस कैनोपी भी है आगे, साइन Okay. बोर्ड के आगे। ओके, तो वहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग भी खड़ा नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट, क्रेन भी नहीं नहीं ला पा लगा रहे। सकते हो क्योंकि हाई टेंशन वायर है। वो केस में 3-4 टीम्स हमारी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर की थी वो मना करके निकल गई, बिकॉज सही बात है, करेक्ट, जान पे खेल के तो कोई काम नहीं करे। करेक्ट, सो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा हमें टैकल करना पड़ता है, और फाइनली सॉल्यूशन हमने साइनेजेस तो लगाई है, लेकिन उस स्टेज में हमें 3-4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर से फेस करना पड़ा, रिजेक्शन सहने पड़े। पावर सप्लाई फिर हमने पीसीएमसी से बंद करवाया 2 घंटों के लिए, और फिर वो इंस्टॉलेशन, लेकिन उसके लिए परमिशंस। अभी यहाँ पे हमारा नुकसान होता है करेक्ट, 2 वीक्स डिले होने के कारण, करेक्ट, और जो पीरियड आपको क्या लगता है, ये मैन पावर जब साइट पे जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो जाता नहीं, करेक्ट, तो 3-3 4-4 बार इनको भेजना, करेक्ट, और जो हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है रिसोर्स है उधर, करेक्ट, तो ये वेस्ट होता है ना। यहाँ पे वी आर फेल होते हैं हम। करेक्ट। और Major- मे बी ये जो चैलेंज है वो कैलकुलेशन या वो विजन जो आर्किटेक्ट हो जिसने आपको काम दिया हो उसके एंड से स्लिप हो गया, या स्किप होता है। अभी कैसा है ना, ये हाई टेंशन पावर है, ध्यान में आना चाहिए, वो बाद में आता है। करेक्ट, और वो इंशाल्लाह कोई जो चीज़ है काम जो देता है ओनर, उसको पता रहता है, लेकिन उनको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा Correct. बताएगा तो ये लोग मना करेंगे। करेक्ट, तो तुम्हें भी काफी होने के बाद अपने को काम तो कंप्लीट करके देना ही होता है। करेक्ट। आपने कहा कि आपके बहुत से प्रोसेसेस है, बहुत से अलग अलग स्टेजेस है, और इन सब चीज़ों के लिए स्किल्स तो सही, साथ साथ में कुछ इक्विपमेंट्स भी है। सो इज इट अ वेरी कैपिटल हैवी बिजनेस टू डू? बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। इज इट अ वेरी कैपेक्स हैवी बिजनेस? कैपेक्स है, कैपेक्स आप एक बार इन्वेस्ट भी कर लो, उसको रन करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, ओपेक्स कॉस्ट ज़्यादा है कैपेक्स से। अच्छा, ओपेक्स भी काफ़ी है। हाँ, इसको मेंटेन करना सर, व्हेनेवर इफ़ यू डोंट स्विच ऑन योर मशीन, हाँ, वो सारा सिस्टम उसका किट ड्राई हो जाता है, करेक्ट, तो एवरीडे आपको उसको रन करना ही पड़ता है। करेक्ट, काम फॉर हो नहीं है एग्जांपल, उसको run हाँ, काम हो ना हो उसको रनिंग मोड पे रखना ही पड़ता है हर एक मशीनरी को। करेक्ट, तो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है, कैपेक्स तो कर लेगा कोई, करेक्ट। कोई भी कर लेता है, लेकिन ऑपरेशनल इसमें आपको मेंटेन रखना
वर्किंग उसके कैपिटल लिए आपका लेकर काम चालू रखना, वो सब मेजर पार्ट। So, as a finance head of your organization, how do you how do you manage this? क्या आपको सर आई प्लान द एक्टिविटीज वेल बिफोर इन टाइम। ओके फाइनेंस में भी मेरा कैपिटल फाइनेंस कैसा मैनेज होना चाहिए, ऑपरेटिव फाइनेंस कैसा मैनेज होना चाहिए। आज की डेट में आई हैव ज़ीरो अमाउंट टू पे टू एनी ऑफ माई सप्लायर। मैं मेरा पेमेंट आने के पहले आई डू द पेमेंट्स टू माई सप्लायर्स। आई डोंट वेट फॉर माई पेमेंट टू कम। मैं पहले सप्लायर को पेमेंट करता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे सप्लायर पर क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिस इज़ योर रिपुटेशन करेक्ट मार्केट में। आज की डेट में मैं किधर भी कुछ भी डिमांड करूँ तो मुझे विदाउट क्रेडिट हाँ इनका है भेज दो, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन वही मेंटेन रखने के लिए मैं मेरा पेमेंट का प्रोसीजर मैंने स्ट्रीमलाइन किया। तो पहले आई डू द पेमेंट्स, क्योंकि जब मैं पुणे आया था वही मैं बंदा हूँ जिसको यही वेंडर्स मटेरियल देने के लिए हिचकिचा रहे थे। करेक्ट क्यों ये नया है, मालूम नहीं हमें कब देगा। करेक्ट लेकिन आज ही वही सब वेंडर्स हैं जो मुझे क्रेडिट पे सारा मटेरियल देते हैं। क्रेडिट मेरा 3 महीने का है, लेकिन मैं इमीडिएट नेक्स्ट मंथ आई डू देयर पेमेंट्स। वही रिपीटेशन काम में क्या आपका जॉब में जब अपने फाइनेंस के रोल में जॉब किया था विद फ्यूचर ग्रुप, डज इट हेल्प इन योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? हाँ जी, फाइनेंस मतलब कोर फाइनेंस नहीं था ये। दिस फाइनेंस इज प्योरली फॉर द वीएम डिपार्टमेंट। वीएम प्रोजेक्ट का फाइनेंस था वो। प्रोजेक्ट फाइनेंस हम लोग प्रोजेक्ट्स को वर्क करते थे। फॉर एग्जांपल बिग बाजार, सेंट्रल, वीएम के लिए जो प्रोजेक्ट का बजट है वो बजट का फाइनेंसिंग हम लोग मैनेज करते हैं, एंड दैट इज हेल्पिंग यू विद योर स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं। ये हेल्प करते हैं सर। ट्रेन में ट्रैवल करते थे ना, तो आई यूज्ड टू जॉट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस विच अकर्ड इन अ डे। इतना छोटा छोटा लिखता था। यही चीज़ें काम में आता है कि हमको आपका एक्सपेंस सारा दिखता है पेपर पर। करेक्ट। ये आदत है मुझे, पहले से आदत पड़ी है। कुछ भी हो जाए मैं लिख के रखता हूँ, मैं भूलता हूँ। हाँ इसके लिए मैं लिख के रखता हूँ और टिक मार्क कर देता हूँ उसको। हुआ है नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे करना है। तो ऐसे चीट वो सारे छोटे छोटे चीट्स काफ़ी मेरे जेब में रहते हैं। तो यही चीज़ काम में तो आती है ज़रूर। आपका जो सर्विस इंडस्ट्री है, हम बोल सकते हैं कि हमें कंज्यूमर सर्विस, प्रोडक्शन सर्विस काइंड ऑफ इंडस्ट्री में है, कि जहाँ पे हम एंड गुड भी दे रहे, टेंजिबल गुड भी दे रहे, बट द एंटायर प्रोसेस इज अ सर्विस। इसमें इसका फाइनेंस मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? कितना, जैसे आपको तो पेमेंट पूरे प्रोसेस के बाद ही आएगी, आपको पहले डिज़ाइन करना है, उसका पूरा प्रोडक्शन करना है, फिर इंस्टॉलेशन करना है, हर प्रोसेस पे, हर स्टेज पे डिसाइडेड अ पॉलिसी हर एक प्रोजेक्ट में। इफ इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट वी डिमांड फॉर 50% एडवांस, 25% ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। द बैलेंस 25% का रिटेंशन इज ऑफ 5%, 20% आफ्टर 1 मंथ ऑफ। ये पॉलिसी डिफाइन करना ज़रूरी है। लॉसेस हमने भी बेयर किए हुए, विदाउट पीओ काम करके या काम करने के बाद रिजेक्शंस से के वो बिग प्रोजेक्ट्स में ऐसा करते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल केसेस में अगर कोई करता है, दे रहा है 50% एडवांस, तो भी टेक इट। नॉर्मली इन आवर सिस्टम्स इट इज मेंशन्ड दैट 50% एडवांस इज एज अ फाइनेंस हेड। और इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में प्राइसिंग हमको करनी पड़ती है, और इतने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि किसी भी प्रोसेस में कोई भी चीज़ गलत हो सकती है, किधर भी कोई लॉस हो सकता है, किधर भी कोई नुकसान हो सकता है, प्लस आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी रखना है। प्राइसिंग सर कॉम्पिटिटिव ही देना पड़ता है। तो फिर ये रिस्क मैनेजमेंट एज अ फाइनेंस हेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे करते हैं? क्योंकि लाइक कहीं पे भी काफ़ी टाइम लॉस होता है, क्योंकि
डायरेक्ट एक ही मटेरियल पे काम नहीं होता है, करेक्ट 4-5 डिफरेंट मटेरियल यूज़ करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है। करेक्ट तो लास्ट स्टेज में अगर कुछ गलतियाँ होती है काम में, रिजेक्शन वहाँ पे करना पड़ता है। तो 100% कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं और नया प्रोडक्ट ही कस्टमर को देते हैं। तो ये होता है, गलत होता है तो होता है। रिजेक्शन करना पड़ता है और नया तो देना। एज अ फाइनेंस हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसकी कंटिजेंसी प्लानिंग या एक कुछ परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट टू फॉर सच काइंड ऑफ रिस्क, ऐसा कुछ आप करते हो? वैसा फिर कॉस्ट एनालिसिस, वो वैल्यू इंजीनियरिंग अगर अपन करेंगे ना हाँ तो करना पड़ता है। करना पड़ता है। अदरवाइज फ्लैट एक फॉर्मूला जो रहता है हाँ जिसमें सारा इंक्लूड रहता है, करेक्ट। वेस्टेजेस, लेकिन वो हर टाइम कैलकुलेट होकर परफेक्ट बैठता ही है ऐसा नहीं, नहीं है। लेकिन एक टेंटेटिव अलग से कुछ निकाल के रखते हैं वैसा कुछ नहीं। इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना काम करता है? डज योर एक्सपीरियंस हेल्प टू रिड्यूस योर लॉसेस देयर एंड आपका प्लानिंग उस हिसाब से प्राइसिंग के देते वक्त थी कि हाँ पता है कि इधर एक या दो इटरेशन होंगे या इधर नुकसान हो सकता है या इधर कॉस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ऑफ लेबर ज़्यादा लगेगा, तो विथ एक्सपीरियंस डज दैट मैच्योरिटी Yes. कम एंड डज दैट हेल्प इन गिविंग द बेटर कोटेशंस और बेटर? कोटेशन में सर काम नहीं करता है, बिकॉज इन कोटेशन ओनली फॉर्मूला वर्क्स, हाँ वेयर एंड हाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं ना, वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करता है। कौन सा मटेरियल के साथ कितना फास्ट काम हो सकता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। फाइनली आता है वो प्रोडक्शन टाइम जो पूरा ओरिएंटेड लेबर्स पे ही है। वहाँ पे प्लस माइनस मैनुअल होने के कारण टाइम लगता है, सारा कंप्यूटराइज नहीं होता है, मशीन पे सारा काम नहीं होता है, मेजरली ये मैन्युअली ही काम होता है। मशीन पे बेंडिंग होगा सर, मैन्युअली ठोक पिट के उसको सीधा करके वो कैरेक्टर देना पड़ता है। तो ये मशीन के ऊपर आपको शेप मिलेगा, फॉर्मेशन लेबर को ही करना पड़ता है। करेक्ट। तो कॉस्ट वाइज वैसा ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं, मतलब लेबर वर्क तो है जहाँ करेक्ट, पे मतलब यहाँ पे हर एक चीज अकाउंट नहीं कर पाएंगे, हर एक चीज नहीं कर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस के Experience हिसाब से- से हम लोग सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा करो करने के पहले करेक्ट। बस। तो इसका फाइनेंसिंग या इसका प्राइस कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होता है? हाउ डू यू कैलकुलेट इट एज एंड एड अप एज अ प्राइस कंपोनेंट टू योर ओवरऑल? इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। आप ये एक्रेलिक में कर रहे हो या एल्यूमिनियम में कर रहे हो या टाइटेनियम में कर रहे हो या स्टेनलेस स्टील में कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द मटेरियल व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। प्राइस वाइज हर एक मटेरियल का फॉर्मूला हमारे पास सेट किया हुआ है, कौन से मटेरियल के लिए कितना प्राइस लगाना चाहिए, whether it should be in square feet or it should be in running inch or as per the character of the letter. ये फॉर्मूला है। अगर मेरे नाम में 7 अल्फ़ाबेट्स है और आपके नाम में 4 अल्फ़ाबेट्स है तो आपको प्राइस और आपका अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर बोल्ड है या स्लिक है मेरे नाम का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से उसका स्क्वायर इंच या स्क्वायर फीट रेट क्या होना चाहिए ये हम लोग पहले ही डिफाइंड है। डिफाइन करके रखा हुआ है। तो इसके लिए अभी प्रिंटिंग में कैसा स्क्वायर फीट रेट कैलकुलेट होता है, प्रिंटिंग फ्लैट रहता है, so it can be calculated Correct. in square feet. Correct. But in signages or any production customized work, square feet rate नहीं होता। It is completely depend upon the characteristic of Of the the form and characteristics of the design. Correct. and the material. Correct. अभी अब स्टील का अलग है, ब्रास का अलग है, एक्रेलिक का अलग है, हर एक के स्क्वायर इंच और कैरेक्टर के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से रेट्स अलग अलग होते
बट आपने इसको पहले से ही डिफाइन करके रखा है, इसीलिए आपको कोटेशन प्रोसेस आपका स्मूथ हो जाए। मे बी किसी को अभी किसी ने अगर समझो कोई अब कितने एंटरप्रेन्योर्स है, उनका ये प्रोसेस डिफाइन नहीं है, या उनके ये सर अभी ये साइनेज मेकर्स हम्म, कौन है, कौन हम्म, सा कॉम्पिटिटिव है? हम्म, नंबर प्लेट वाले भी साइनेज मेकर हैं करेक्ट और रेनोल्ड साइनेज मेकर्स भी है। करेक्ट हर एक चीज़ के टाइम ये फॉर्मूला काम नहीं करता। हम्म समटाइम्स वी हैव टू जस्ट करना पड़ता है नाम के लिए, और ये फॉर्मूले से अगर काम करेंगे हम्म तो आपको मालूम है आप सही हो। हम्म हम्म सामने वाला पार्टी आपको बार्गेन करने के लिए नेगोशिएट कोई भी लेवल पे कैसा भी करेगा, करेक्ट बट यू नो फॉर दिस BOQ, फॉर दिस स्पेसिफिकेशन, दिस इज द रेट, करेक्ट देन यू कैन फाइट। अभी मेरे केस में ऐसा होता है काफ़ी टाइम, बिकॉज देर आर एन लॉट ऑफ सेम लुकिंग मटेरियल्स करेक्ट with the different pricing. प्राइसिंग तो when you know what product you are weighing at what price, फिर वहाँ पे आप समझा सकते हो सामने वाली पार्टी को, करेक्ट वो हिसाब से वो डील करना पड़ता है। एज अ फाइनेंस हेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आप सबसे इम्पोर्टेंस किस मेट्राइसिस या किस फैक्टर को देते हो? आप रिटर्न्स पे फोकस करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हो, एक प्रोजेक्ट के पीछे मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के ऊपर फोकस करते हो, या आपका कौन सा एस्पेक्ट पे मैक्सिमम फोकस रहता है टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियली और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कंपनीज इंटैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी साल भर का टर्नओवर होने के बाद ही हम लोग निकालते हैं। ओके सिर्फ कंट्रोल ये रखते हैं हर एक प्रोजेक्ट का कि वहाँ पे मिनिमम लॉसेस हो, ओके वेस्ट ऑफ मटेरियल हो। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादातर निकलती है वेस्टेज में से, ओके वही हमारा प्रॉफिट है। और फाइनेंस कंट्रोल तो बेसिकली पहले से टर्नओवर, कितना टर्नओवर करेंगे, टर्नओवर टारगेट्स के ऊपर मोस्टली आपका फोकस होता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, तो टर्नओवर टर्नओवर के ऊपर सी ये प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिपेंड्स परसेंटेज पे, प्रोडक्ट के परसेंटेज। दिस इज ओनली डिजाइनिंग नहीं है, मेजरली हमारा प्रोडक्शन। करेक्ट डिजाइनिंग वेर इन देर इज जीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, वो सारा क्रिएटिविटी 100% प्रॉफिट मार्जिन। इन प्रोडक्शन वी वर्क ऑन 30 to 35% लेबर प्रॉफिट मार्जिन, which involves labor as well as profit, infrastructure cost. Planning में finance planning how we do, I'll tell you frankly. Each project, whatever the profit or the payment come, immediately I transfer to my other account, current account. That is my profitability. ओके वो इमरजेंसी में I use that. और रनिंग अकाउंट इज डिफरेंट एंड प्रॉफिट अकाउंट इज डिफरेंट। सो योर वर्किंग कैपिटल अकाउंट इज डिफरेंट एंड देन I यू have हैव 2 accounts of the same name. Big projects amount which whatever I get, I immediately transfer it to the sleeping account. और वहाँ से सारा फिर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट मैं वहाँ से यूज़ करता हूँ। ओके इंफ्रा बिल्टअप करने में मैन पावर केस। अभी एज एन एंटरप्रेन्योर हमने बात की, आपका HR साइड देखा, फाइनेंस साइड देखा, ऑपरेशन साइड्स देखा, मार्केटिंग के लिए हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आपने जब स्टार्ट किया था तो आप बोले कि बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू हैड ऑलरेडी डन एंड द रेफरेंसेस दैट यू हैड ऑलरेडी जनरेटेड द कनेक्ट, और आपने कहा कि आप कोई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट लेकर करके भी आपने आपके अर्ली कस्टमर्स आपने लाए। B2B स्पेस में कस्टमर्स कहाँ से मिलते हैं? जब आपको किसी बिल्डर से कनेक्ट करना है, किसी कॉर्पोरेट से कनेक्ट करना है, वेयर डू यू गेट दीज लीड्स फ्रॉम?
obviously from the network background, Okay. networking platforms. Secondly, I get these repeat and new customers just because I provide them आफ्टर सेल सर्विस. अभी प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स केस में कैसा होता है ना, वन टाइम प्रोजेक्ट करके निकल जाते हैं. रीसेल जब फ्लैट होता है या मेंटेनेंस आता है वो देते नहीं. वहाँ पे हम लोग रिलेशन बना के रखते हैं. रिसेल का भी फ्लैट अगर हो, एक नेम प्लेट भी लगानी हो तो हम लोग हिंजौड़ी जाके भी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग Glorish Township past 12 years for PSCL. अगर मैं वो बैकग्राउंड में चेक करता हूँ रिसेल के फ्लैट्स, उसका वॉल्यूम ऑफ नंबर्स जो फ्लैट के रिसेल में आते हैं वो बहुत ज़्यादा है. Okay. तो मेंटेनेंस प्रोवाइडर्स आर द 100% प्रॉफिट मेकर्स ऑफ देयर कंपनी. Okay. आपको मेंटेनेंस में 100% प्रॉफिट मिलता है प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा. तो इसके लिए वी आल्सो फोकस्ड ऑन आफ्टर सेल सर्विस. तो बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस और क्लाइंट सर्विसिंग ही आपको रेफरेंसेस लीड जनरेट करते हैं और प्लस आपको एडिशनल उन्हीं क्लाइंट्स का मेंटेनेंस का. हाँ, फॉर एग्जांपल बिल्डर्स आप देखेंगे ना, बिल्डर्स को आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत है. बिग बिल्डर्स, स्मॉल इंडिविजुअल बिल्डर्स, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं. क्योंकि पूना में इंफ्रास्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट काफ़ी सारे जगह पे चालू है, तो उनके लिए भी इंडिविजुअल 1-to-1 प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हम लोग करते हैं. हमारा यूएसपी वही है, आफ्टर सेल सर्विस. और हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग मटेरियल है, वही मटेरियल उनके लिए लगता है. वी आर टाइड अप विद ब्रोकर्स. अभी ग्लोरिश में 10 ब्रोकर और वहाँ पे हमारा नंबर रजिस्टर है. तो कोई भी फ्लैट लेता है, ब्रोकर का नंबर, ब्रोकर हमें फ़ोन करके उनके साइनेजेस बनवा के देता है. अगर मैं एक नेम प्लेट फॉर एग्जांपल सप्लाई प्रोजेक्ट कॉस्ट में 100 रुपये का देता हूँ, वही नेम प्लेट ये वायरल नहीं करोगे ना. नहीं. तो ये वहाँ पे 400% पे देता हूँ. करेक्ट. तो रिटेल इज एनीवे, रिटेल प्रॉफिटेबल तो होता ही है इंस्टीट्यूशनल सेल से. मेंटेनेंस प्रॉफिटेबल होता है. मोरिया क्रिएशन का, जब हम मोरिया क्रिएशन बोलते हैं तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट बेस है, उसको किस पोजीशनिंग से आइडेंटिफाई करता है? आर यू मोर ऑफ अ डिज़ाइन लेड ऑर्गेनाइजेशन और यू आर मोर ऑफ अ वैल्यू लेड और ऑपरेशन लेड ऑर्गेनाइजेशन? आपको किस पोजीशन से ज़्यादा रिलेट कर पाता है? इट्स अ वैल्यू एडेड मोरिया क्रिएशन. शुरुआत में अर्लियर वी हैड फोकस्ड ऑन क्रिएटिविटी. नाउ वी हैड चेंज्ड द फोकस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. आपका बिजनेस, जैसे अपन अभी डिस्कस किया, कि बहुत डिपेंडेंट है आपके रेपुटेशन पे, आपके काम पे, रेफरेंसेस पे, रिकमेंडेशंस पे, नेटवर्क पे. तो कैसा टाइम आता है जहाँ पे आपको लीड्स ड्राई अप हो गए और आपके पास लीड्स नहीं है बिकॉज नोबडी, मे बी रिसेंटली किसी ने रेफर नहीं किया है, या सो आप do you feel as a marketing head of your organization insecure sometimes because आप लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो और लोग आपके लीड जनरेशन कर रहे हैं? तो कभी इनसिक्योरिटी फील होती है कि इनफ लीड्स है नहीं पाइपलाइन में, या सीजनल इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसा कभी उसका फील होता है? ऐसा स्टेजेस भी आते हैं. when you are not active, surely you will not get any business. When you have to maintain the relation and the trust and the bonding between the networking platforms, whatever you have, or even with the individuals. So when referrals dry up, what do you do generally at that time? नहीं, होने की इंतज़ार नहीं करते ड्राई अप होने की. 3 महीने से पहले ही अगर मुझे आगे 3-6 महीना सस्टेन करना है तो आपने कहा कि आपका प्रोडक्शन चालू रखता है. 3 मंथ्स पहले मुझे उसका बैटिंग या उसका सारा प्लानिंग करना पड़ता है.
तो भी मैं आगे 3 महीने 6 महीने का नाउ आई नो। लेकिन ऐसा होता है वेन एवर वी गेट बिग प्रोजेक्ट्स ना, हम लोग थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। अभी 6 महीने हमारे पास काम है तो मैं क्यों मार्केटिंग करूँ, नए काम क्यों लूँ। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे वैसा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ करके मैंने ये साल में तो आई डिसाइडेड कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आने दो, वी विल कीप ऑन डूइंग मार्केटिंग, नेटवर्किंग, बिल्डिंग अप ट्रस्ट। जो ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर मेरे एक्स क्लाइंट्स हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माई। रेपुटेशन मेरा रिलेशन सभी के साथ अच्छे। कोई भी आज तक एक भी कंपनी में से मैं ब्लैक लिस्टेड या ज़ीरो परफॉर्मेंस केस से नेगेटिव मेरा मोरिया क्रिएशन का है नहीं। सो दैट्स वाई लीड जनरेशन और रेफरेंसेस ये मुझे आते रहते हैं। नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं। दीज आर द प्लस पॉइंट्स। अगर समझो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपको 5 लाख रुपीस है आपके पास अभी और आपको कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी में इसको इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट वुड बी द गो टू मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट यू वुड इन्वेस्ट योर मनी इन? मार्केटिंग के लिए ऑब्वियसली अभी रनिंग तो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया पे ही यूज़ करें। बिकॉज वाई आई विल इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज वी हैड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, UV flatbed machine we had taken. So corporate gifting, corporate products, which would be easily sold on the online platform. तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं। या गिफ्ट आर्टिकल्स, Exactly. गिफ्ट आइटम्स, डिफरेंट मटेरियल्स ऑन विच यू कैन तो डिजिटल मार्केटिंग करो। इतने सारे रोल्स एज एन एंटरप्रेन्योर आप निभाते हो, आप HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, इतना सब हैंडल करते हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा रोल लगता है? व्हाट रोल यू एंजॉय द मोस्ट? बिजनेस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई लव ऑल दी रोल्स बिकॉज एक कोई मैं जॉब तो नहीं कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर, तो सारे रोल ही अच्छे लगते हैं। सबसे ज्यादा सबसे एंजॉय कौन सा करते हैं? फाइनेंस। फाइनेंस में आपका पहले से ही पकड़ भी रहा है, आपको एक्सपोजर भी रहा है। मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना या फिर रिस्क लेना। मैं आपको कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, Rapid. आप मेरे को उसका आंसर दीजिए कि आपको क्या है। सो एक रैपिड फायर जैसा कुछ खेलते हैं। ओके। ओके, स्केचिंग, डिजाइनिंग और स्ट्रेटेजी बिल्डिंग? स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग अ स्टोर और डिजाइनिंग अ साइनेज? साइनेज। वन ब्रांड जिसका विजुअल मर्चेंडाइजिंग या जिस तरीके से वो अपने आप को विजुअली प्रेजेंट करते हैं आपको बहुत पसंद आता है? वन ब्रांड VIP लगेज। VIP लगेज, यू इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। या उसने ही बनाया है। One signage trend that you see is a very good trend. डिजिटल signages. Corporate clients or retail clients? कॉर्पोरेट clients. Growth led business or craftsmanship led business? Growth led business. Most unusual signage request or a signage that you had made in your life? फ्रॉम अ डिज़ाइन From to design point of a direct installation means most of the times we get a sketch हाँ ये हमको बनाना है। हाँ। और एखादी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी साइनेज की कि आपको कुछ एकदम यूनिक साइनेज बनाने का मौका मिला या कुछ अलग हटके करने को मिला? काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ है, अलग से साइनेज या अलग से शोरूम। अभी शुरुआत तो हमने रिटेल स्टोर से की थी,
रिटेल स्पेस डिजाइनिंग से, स्कूमा Correct. शोरूम्स के पायलट स्टोर से किए, हाँ. फिर वीआईपी लगेज के भी किए। ऐसा कोई यूनिक साइनेज आपको याद है, या मे बी एक यूनिक विजुअल मर्चेंडाइज या सर रिटेल ये ऐसे जिसको पॉसिबल जो नहीं है ना, वही काम हमारे पास आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड काम ही आते हैं जो हम लोग इजीली करके देते तो Because of ऐसा the कोई याद है आपको हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि एथर के पाइलॉन्स जो हमने किए थे 25 फीट के, एथर बाइक के एथर पाइलॉन्स? के पाइलॉन्स, फिर चाकन के इंस्टॉलेशन साइट्स हैं, करेक्ट. टाटा स्टील प्लांट के हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे जो ध्यान में रहे हैं अभी तक। ओके. इस फील्ड में अगर किसी को आना है तो उसको क्या कोर स्किल्स होने चाहिए उसके लिए? उसका अगर समझो किसी को साइनेज इंडस्ट्री में आना है, साइनेजेस में आना है, या विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आना है, विजुअल रिटेल स्पेस डिजाइन में आना है, तो इसे क्या कोर स्किल्स है या क्या कोर चीज़ें हैं जो रहेंगे तो ही आना चाहिए उन्होंने? बेसिकली यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप कुछ भी करो, हम्म. कोर्सेज तो है, बीएफए कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, डिग्रीज कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, वीएफएक्स कर सकते हो। तो यही फील्ड में आपको अगर आना है तो आप ये बात जो मैंने कोर्सेज बताए वो सब करके भी आ सकते हो, या बिना कुछ करे भी आ सकते हो। जैसे But- कि मेरा पार्टनर है, हिज फादर वाज अ फैब्रिकेटर। हाँ. टेक्निकली साउंड होने के कारण ही केम इनटू क्रिएटिव बैकग्राउंड। टेक्निकल डिटेलिंग अच्छा है आपका, हम्म. वो क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। हम्म. मोस्टली अभी रेफरेंस इमेजेस लेके ही सारे क्रिएटिव लोग अभी के हालात में Correct. इधर उधर से इमेजेस लेके ये हमें बनाना है, लेकिन Correct. फाइनल बनेगा कैसा? तो Correct. ये लोग टेक्निकली हेल्प करके आपको बना के देंगे। करेक्ट. तो आप साइट्स पे रेफरेंसेस लेके क्रिएटिव मत बनो। आपका क्रिएटिविटी ऑन पेपर, स्केचिंग इसमें भी आने, थिंकिंग में आने दो, करेक्ट. प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आने दो। मोरिया क्रिएशन में नया क्या कर रहे हो आप? व्हाट इज द न्यू थिंग्स दैट यू आर एडिंग अप इन मोरिया क्रिएशन? आपने कहा कि आपने यूवी बिल्ड Corporate giftings, decorative props, decorative items which can be sold online. ओके. On 19th and 20th of April, there is an exhibition in PYC Community Hall. I request all of you to please come to the exhibition, wherein whatever new production samples we had done, which are kept on sale in the counter. Creative props we had done in that. Different material has been used, which can be easily sold. Okay. Like that, we are trying this out in PYC. Okay. Okay. Nice. One advice that you would give to somebody who is starting his entrepreneurship journey after in signages or in production of visual merchandising. So, और कौन सा रोल है जिसको आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने, आपने कहा कि क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, बट आपके हिसाब से वन एडवाइस मेरा एडवाइस ऐसा है सर, डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट मत करो। फर्स्ट यू वर्क विद सम गुड पीपल अराउंड यू, एक्सपीरियंस लो अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग फील्ड्स में, 3-4 साल एक्सपीरियंस लो। एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखो, सीखो मैक्सिमम हर एक स्टेज में, क्योंकि सीखना अभी हम भी सीख ही रहे हैं, सीखना तो कभी रुकेगा नहीं। तो अलग अलग इसमें आप सीखो, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा होता है, ऑपरेशंस कैसा होता है, फाइनेंस वाले कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसको सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स का भी लगता है, तो वो भी आप कहीं पे काम करोगे तो ही ये सब सीखो। करेक्ट. इंडिविजुअल कंपनी फॉर्म करके आप कुछ नहीं सीख सकते। वर्क हार्ड फॉर 3-4 years 5 years, जब आपको लगे आप सेटिस्फाइड हो, कुछ कर सकते हो, देन यू स्टार्ट योर, बिकॉज 5 साल में आप अपनी पूंजी बनाओ जो आपके बिजनेस में लगाओ, लेकिन बिजनेस ही करो। करेक्ट. जॉब मत करो। ये मैं आपके एक्सपीरियंस ऑल यंग एंटरप्रेन्योर्स
या न्यू कमर्स की हो, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ. कि be a job maker than a job doer. Yes, Nice. great job. Great job for India. Thanks. So thank you अमरीश भाई, आप आए, हम लोग ने काफ़ी अच्छी गप्पा किए. होप जो entrepreneurs हमको देख रहे थे, there's a lot of value for them from your journey, and thanks for coming and being a part of the boardroom. Thank you, sir. Thank you.